with that, we are ready to power into our first session on day 2 of the India Today Conclave in its Mumbai edition. Those of you tweeting, tweet under the hashtag India Today Conclave Mumbai. And ladies and gentlemen, we begin our first session with the Gen Next, the new leadership curve. And to take it from here, I'd like to quickly invite on stage Rohit Pawar, MLA Karjat, Jamkhed, Maharashtra. Someone who's being viewed off late, especially as, welcome Rohit, as someone who is a de facto opposition leader. Is this after the video that you made of the agriculture minister that led to his tabadla, if one would say? This is what people say, but what I do is I genuinely put forward the real issues of Maharashtra, and a lot of people are aggressive. A lot of people from opposition are speaking against the government, but the points which I take are well accepted by the people. So you think people have accepted you as, and your alliance has accepted you, even though you don't have the numbers to be a leader of opposition, but de facto? No. See, what I say is, you have to be genuine. I am genuine. A lot of other people are also genuine. You just have to fight. So without expecting anything, what I do is like I keep on fighting. I keep on आगे ये जो लोगों के इश्यूज होते हैं वो आगे लेके जाने की मैं कोशिश करता हूँ. अभी लोग क्या कहते हैं वो लोगों का विषय है, लेकिन what I do is very genuine. Rohit, you will always have the burden of legacy. You'll always have the burden of politics. But you're viewed as a next-gen young leader, right? And you would hopefully bring a newness to politics, which, especially like a state of Maharashtra, is extremely jaded with. What, as per you, is your definition of politics, and what are you going to be doing differently than possibly your uncles have done? See, if you ask about my grandfather, his politics has always been developmental politics. So what I believe is I also have to do the same. It has to be developmental politics. We have to work on education. We also have to work on infrastructure. We have to work on employment. So there are a lot of issues what we have to work on. But if you talk about what I define, how I define politics is basically you have to work on real issues rather than, doing politics just to be in politics. So today, if you look at it, whether it is BJP or the alliance parties of BJP, what they do is they do caste-based politics. So development is not talked about. They are just building their politics on caste-based or, Hindu-Muslim, those issues. So which I feel are not the real issues. So we have to build our politics on real issues. We have to be pretty straightforward when we talk about Maharashtra or development of Maharashtra. But your legacy, your political legacy is already in place, right? And Rohit, you come from a state where money power is huge. But for somebody who's new, who brings a newness to politics, wants to do things differently, you talk about caste. 2 days ago, you had Supriya Sule, who actually said that maybe we don't need reservation. Do you also have a new way of looking at that? देखो, उन्होंने जो बोला था, I think, her statement was misplaced. If you look at the whole statement, she had said caste-based politics is important. But if there's someone who has taken benefit of reservation, and if that person is well-to-do, then he should think, or she should think, whether to take benefit of, reservation. That is what she meant. She didn't say about economic-based reservation, but her statement was, a little twisted later on. Like, for example, when we speak for, say, 1 minute, and from that, some people take out 10 seconds, and they use it for a political mileage. So her statement was misrepresented. That is what I feel. You feel that the statement, did she tell you her statement was misrepresented? No, see, when you look at the whole statement, when you hear the whole statement, so definitely the point what people are talking about, the opposition is talking about, they're talking about part of her statement. So Rohit, what do you believe? Do you believe there should be
reservation on the basis of caste? See, reservation is... Especially in a state like Maharashtra, See, because if you look at the current context, we're looking at reservation over 70%. There's a lot of youth out there who's going to be looking at a young leader like you and just say, what about merit? What about us? See, reservation is important. It's important for education. It's important for job and all. But what I feel is, along with reservation, we also have to work on policies. Like, for example, why, like from when a child is in school, from there, like for example, uniform. Few students get uniform, few don't get uniform. So from there, the child starts thinking, why that child has got uniform and I don't get it? So what I feel is, from school time, we have to see that everyone gets, like for example, in school, or whether in case of education also, there also, if government takes a call, say for example, professional courses, if government does the funding of professional courses in Maharashtra, it will require about 11,500 crores. If education today, to become an engineer, you need 6 to 7 lakhs. So, but if government takes care of education, what I feel is, today, along with caste-based reservation, we also need certain support for education, and plus, today, why caste-based reservation has become important reason is, like for example, agrarian crises are there in Maharashtra. So now people from agriculture, or the people who are doing agriculture, or their children, they feel if I get a reservation, then maybe in future I would get jobs. So today job is a problem. So you think the current context in which we are looking at the Maratha reservation, you're pro that it should happen. We need it. See, we need it, but for that we have to go to parliament. So, we have to go above 50%. Exactly. The real thing is we have to go to Delhi. But today, if you look at it in Maharashtra, people who are in power, so for example, for example, I'll tell you what, we had the Chief Minister of Maharashtra yesterday, and he did speak repeatedly about it's time to only look and address the creamy layer. And every caste will have a particular, even, when you look at the SC/ST, will have a layer which is the creamy layer, which actually draws all the benefits of reservation, and the others get left behind. So it's time to A, look at the creamy layer, B, also to identify economically weaker sections, EWS. देखो क्या होता है कि ये हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो he generally creates problems. But he has no solution for anything. अभी इन्होंने क्या बताया कि इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. बट आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर क्राइसिस होने के कारण ये जो फार्मर्स के बच्चे हैं या उनके जो चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स और वेदर लेबरर्स, टुडे दे हैव डिग्री बट दे डोंट हैव वर्क. उनके पास काम न होने के कारण उनको मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि आरक्षण मिलने के बाद उनको काम मिल जाएगा. तो ये जो मिसकंफ्यूजन है, जैसे कि अभी इन महाराष्ट्र ओनली 2.5 lakh jobs are there in government. Reservation is only required for that. So generally, if you look politics of BJP, they will just keep on increasing the difference between different castes. So अभी ये जो vertical आरक्षण की बात की, अभी ये 13% के बारे में वो बात कर रहे SC के अंदर. अभी उसके लिए कमिटी तो फॉर्म हो गई, लेकिन 13% में कितना सब कास्ट आते हैं वो भी लोगों को बताना पड़ेगा. उसमें से कितने किसको मिलेंगे वो भी बताना पड़ेगा. लाइक मे बी देयर इज अ वन कास्ट विच जनरली पीपल से कि उनको सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन देयर इज अ अदर कास्ट हु डेफिनेटली गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, लेकिन उसका परसेंटेज क्या है वो बहुत डिटेल में जाके बात करना पड़ेगा. नहीं तो क्या होता है कि बीजेपी जनरल जो कोई भी इलेक्शन आता है उसके पहले कास्ट के बारे में वो मुद्दा उठाते या आरक्षण के बारे में मुद्दा उठाते. जैसे 2014 में उनको इलेक्शन लड़ना था, उनको धनगर समाज का बारे में उन्होंने विषय लिया था, आरक्षण के बारे में फ्रॉम एसटी. उन्होंने बोला था कि फर्स्ट कैबिनेट में वो निर्णय लेंगे, लेकिन दे डिडंट डू दैट. अभी तक 10 साल हो गए वही विषय चल रहा है. इवन दो लाइक आई सेड you're a young leader, but you do subscribe to the old ways of politics, especially where reservation is concerned. No. So you've stuck with that. But let me... No. I think I want to correct. देखो, I want to say that politics में caste based जो भी विषय है वो politics का भाग नहीं बनना चाहिए. Okay. Politics में it must be more development. But okay, Rohit, because we have less time, so let's quickly move on. The other question, which
you're young, you're in politics, but you're also, like I said, carry the burden of your legacy, which is the Pawar legacy. Be dynasts, nepo kids, raising questions of, is there space for somebody who doesn't come from a non-political background, enter politics? We are talking about next-gen leaders. All three that we have today, right after you, there'll be Shrikant Shinde ji, there'll be Mr. Harsh Sanghvi. All of you are somewhere down the line come from political legacy. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कल देवेंद्र तो जगह कहाँ है औरों के? देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, उनके पिताजी एमएलए थे, उनकी आंट एमएलए थी. अब ठीक है, मेरे फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर. So you're okay with being called a nepo kid? देख, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर डॉक्टर में कोई नेपो डॉक्टर नहीं कहा जाता, वकील में कोई कहा नहीं जाता, और सबको संधि वहां पे मिलनी चाहिए. उसमें से जो भी आगे आता है, देखो कौन से फैमिली में कोई भी डॉक्टर बन सकता है रोहित. नहीं, बहुत मुश्किल है आज के जमाने में, वेयर इट्स ऑल अबाउट मनी, वेयर इट्स ऑल अबाउट political allegiance, for somebody who's completely off the cuff to come and say that I will make it big in politics. नहीं, वैसे नहीं होता. Very little space. नहीं, वैसे नहीं होता. देखो, they can start with जिला परिषद and all, and they can go. जैसे कि अगर मैं नेपो किड हूँ, समझो, तो मैं एमएलए या एमपी बन सकता था. मैं कहाँ से चालू किया? जिला परिषद से चालू हुआ. तब पूना जिला परिषद में हमारी सत्ता थी. Did I take any position there? No. जब मैं एमएलए बना, हमारी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी, वहां पे मैंने कोई पद लिया क्या? नहीं. लेकिन आगे जाके जब सत्ता आएगी, तब डेफिनेटली आई विल टेक अ पोस्ट. रीजन इज आई हैव वर्कड फॉर इट. अभी कोई भी जो मन से काम करता है उसको संधि मिलता है. लेकिन आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हो वो भी डिफाइन करना चाहिए. जैसे कि मैं बिजनेस में पहले था, बिजनेस सेटल किया, देन आई केम इन पॉलिटिक्स. बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में पहला आते, फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं. अभी बहुत जन जो है, नए लोग, उनको लगता है कि पैसा कमाने का माध्यम है पॉलिटिक्स, विच गलत चीज है. जो भी अच्छे, But if somebody wants to come in for the right reasons, there's very Which little is good. space. आप कह रहे हो जिला परिषद से शुरू करो, वो बेचारा जिला परिषद पे ही रह जाएगा. नहीं, बहुत सारे ऐसे एमएलए जिसको बैकग्राउंड नहीं था, वो आ गए, अभी पॉलिटिक्स में है. और लेकिन So you don't see it as a privilege. It is a privilege, Rohit. नहीं, How इट can इज you अ deny? प्रिविलेज, बट दूसरा बर्डन भी आ जाता है ना. अभी देखो, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन कभी आप जैसे जो पत्रकार होते, जो बहुत रिसर्च करके आते, मुझे आगे आपको क्या करना है उस पर प्रश्न कम होते हैं. आपके जो पिछली जनरेशन है, उन्होंने ये किया था, उस पर हमको ज्यादा रिसर्च करके उस आपने पे उत्तर. चलिए, आपने बर्डन की बात की. कितना बड़ा बर्डन था जब when your uncle split, कि कहाँ जाना चाहिए? नहीं, देखो, वो तो इमोशनल, अगर आपने इमोशनल प्रश्न किया तो हम सब इमोशनल थे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने वो निर्णय लिया था. तो अगर आप देखो तो हम चाहते थे दोनों फैमिली इकट्ठा रहे. अजीत दादा भी दुविधा थी कि मे बी आई शुड अजीत दादा के साथ जाना चाहिए था. नहीं, मैं पद के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया. मैं किसके लिए आया? तो विचार के लिए आया. दैट्स व्हाई आई स्टेड विद माय ग्रैंडफादर. ईडी का हुआ तभी मैं ग्रैंडफादर के साथ रहा. दूसरा इलेक्शन आया तभी मैं ग्रैंडफादर के साथ था. अभी भी उन्हीं के साथ. राणे जी कहते हैं 2019 में आप बीजेपी के टच में थे. कौन? नीलेश राणे जी कहते हैं आप. नीलेश राणे जी बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं बहुत इररिलेवेंट कहते हैं. नहीं थे. क्यों रहूंगा? अच्छा, चलिए. तो it was a decision that you made to stick to your uncle Sharad Pawar. Yes. Ajit Pawar ji also said that you won your constituency only thanks to him. When? This time around. देखो, उनके पास टाइम था क्या? अगर आप लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद प्रेशर इतना था उनके ऊपर या एकनाथ शिंदे जी के ऊपर कि लोकसभा तो महाविकास आघाड़ी की तरफ झुकी थी, तो उनके इतना प्रेशर था, उनके पास टाइम ही नहीं था. वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ध्यान दे रहे थे, बाकी जगह वो कह रहे थे it came down to postal ballots. 1240 से आप जीते थे, बिल्कुल ही कम. अगर वो नहीं होते तो आप नहीं जीते. You should thank him for it. अगर आप राहुल गांधी जी के सुने और उनके जो रिसर्च पेपर देखे और जो भी प्रेजेंटेशन देखा, तो मैं 1200 से नहीं आया, शायद 1,20,000 से मैं आया हूँ. मैं बहुत बड़े लोग अगर देखो 7 टर्म एमएलए रहे हैं, नेता रहे, मंत्री रहे, अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रहे. मैं फिर भी लोगों के आशीर्वाद से 1200 से आया. अब 1200 से आके मैं शांत नहीं बैठा. ये जो सरकार है उसके खिलाफ हमारे 10 एमएलए है, या सबसे कम अगर महाविकास आघाड़ी देखो 40 एमएलए है, तब भी मैं 1200 के आके अग्रेसिवली लड़ रहा हूं. मतलब आया हूं किसके लिए, वो काम बहुत अच्छी तरीके से मैं कर रहा हूं. But Rohit, how inspired are you where you call him Ajit Dada is concerned? अभी पिछले महीने
he was seen screaming at a DSP, a woman DSP, for doing and dispensing her job. As a youth young leader, one would have thought that Rohit Pawar would have come and said कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए. आपने डिफेंड किया अपने अंकल को? देखो, अगर ये इंटरव्यू मराठी में होता ना, मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता. ये इंटरव्यू अभी इंग्लिश में, हिंदी में, तो बहुत कंफ्यूजन हो गया. तो दादा का वही है, दादा का जो बोलने का ढंग है वो हिंदी है. स्पेशली उनका हिंदी कैसे है आप सबको मालूम है. तो दुविधा तो है. नहीं, देखो, मैं ये डिफेंड हिम एंड अटैक हिम. नहीं, वैसे नहीं होता. देखो, वहां पे मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है कि जो असली है वो असली है, जो ठीक है वो ठीक है. वहां पे जो अधिकारी थी वो गलत नहीं थी. और दादा के बोलने का अगर ढंग देखा तो वहां पे डेफिनेटली वो बोलने के ढंग के कारण ऐसे लगा कि दादा वहां पे थोड़ा सा अग्रेसिव वहां पे हुए थे. लेकिन वो गलत किया कि नहीं किया? किसके बारे में? दो चीजें थी. एक, बोलने का ढंग देखा तो आई एक्सेप्टेड. अगर आप पावर का इस्तेमाल गलत चीज करने के लिए कर रहे हो तो गलत चीज. और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि देखो वहां पे विषय क्या था. इट वाज अबाउट अ पेनल्टी. और वहां पे जो रेवेन्यू विभाग है, वो जो पानन रास्ता होता है, जो रास्ता खेतों की तरफ जाता है, उसमें जो मुरुम लगता है या जो सॉइल लगता है, उसपे कुछ इशू था. अभी हमने क्या बोला था, आप उनको वहां पे तकलीफ दे रहे हो. किसको? वहां के जो गांव के लोग थे उनको दे रहे हो. और दूसरे बाजू को जो बीजेपी का नेता है अपने बावनकुड़े साहब, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है. तो आप बोल रहे हो कि ढंग, उनका बोलने का ढंग अलग था. ढंग अलग है, लेकिन मेरा कहना है रोहित, आपने भी खुद ही ऐसी ही लैंग्वेज यूज की है. कब? Abhi, right after that, you have where you've used similar kind of language against where you are seen rebuking an officer on duty, screaming at him to do his job. There is, these are bureaucrats, these are police officers. You think you can speak to them like this? देखो, आप अगर अच्छी लैंग्वेज में बात करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं हो रहा, आप 2 टाइम के एमएलए हो, 2 टाइम के एमएलए का भी अगर काम नहीं हो रहा, तो गरीब लोगों का काम कैसे होगा? आप ये समझ लो ना. तो कभी कभार जो व्यक्ति, देखो 90% ऑफ द ऑफिसर्स आर गुड. 10% लोग है ना, वो ऐसे ही टेढ़े होते हैं. उनको अगर आपको सीधा करना पड़ता है तो थोड़ा उस लैंग्वेज में बात करना That gives you the entitlement to scream at an officer in uniform. देखो, यूनिफॉर्म की बात अलग, लेकिन जिस तरीके से आप जिसके लिए हो, आप अधिकारी किसके लिए हो, आप एमएलए किसके लिए हो? लोगों का काम करने के लिए. अगर एमएलए का वो अधिकारी नहीं सुन रहा, तो अगर कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी महिला अगर ऑफिस में जाके 20-20 बार ऑफिस में जाके काम नहीं होने, तो थोड़ा गुस्सा आता है ना. हम यंग लोग हैं, थोड़ा सटक जाती है हमारी, वो तो नेचुरल है ना. लेकिन किसके लिए सटक जाती है? मैं खुद के काम के लिए वो प्रॉब्लम नहीं हुआ था. क्यों मैं गुस्सा हुआ था? क्योंकि वहां पे जो 70 करोड़ के काम चल रहा था अब अंडरग्राउंड गटर, वहां पे वो जो काम करे, तो बारिश में वो सीमेंट का काम. Do you regret it? No. You don't regret using that kind of language? I won't regret. अगर कोई आगे जाके कोई भी अधिकारी गलत तरीके का काम करेगा, अगर सामान्य लोगों को वो न्याय नहीं देगा, तो इससे भी ज्यादा गुस्सा में हो सकता हूं. लेकिन जो अधिकारी, लेकिन एक दिन पहले मैं वहां के जो तहसीलदार है कर्जत के, और जो वहां के जो बीडीओ है, उनकी प्रशंसा मैंने की. बट अनफॉर्चुनेट चीज है, प्रशंसा की बात में नहीं हुई थी, न्यूज नहीं हुई थी. लेकिन मैं चिल्लाया, उसकी ज्यादा न्यूज हो गई थी. लेकिन मैं अभी भी ठाम हूं. But Rohit, it gives a sense of entitlement that, somebody might not be doing their job, but to justify screaming at them and say, I will do it again. Is this the right approach? देखो, आप गुस्सा किसके लिए होते, वो भी इंटेंट भी मैटर करता है. मैं कैंटीन में जाके किसी का मुंह तो नहीं फोड़ रहा हूं ना. सत्ता में जो लोग हैं वो किसी का मुंह फोड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा. वहां पे अगर आप देखो, वहां पे अधिकारी पुलिस के ऊपर मारापीटी करते, उन पे कुछ नहीं हो रहा. लेकिन मैं मेरा स्पेस रख के. But many say you're actually, if there is Ajit Dada, Rohit Pawar wants to be Rohit Dada. देखो, मेरा अलग स्टाइल है. स्टाइल तो सेम ही है. नहीं, देखो, अगर आप मेरा हिस्ट्री देखो, मीडिया के साथ जिस तरीके से बात करता हूँ, लोगों के साथ करता हूँ, उसका स्टाइल देखो. और जब अधिकारी जो खराब काम करता है, काम नहीं करता, उसके साथ देखो. जो अच्छा काम करता है, उस अधिकारी का स्टाइल देखो. मैं किसी का कॉपी नहीं करता, मैं किसी का कॉपी जेरोक्स नहीं होना चाहता. मैं खुद का रोहित पवार होना चाहता हूँ. खुद का स्टाइल मैंने मेंटेन की. Rohit, we are talking about Ajit Dada. Let's talk about Sharad Pawar ji as well. Sharad Pawar ji has said on record कि उनकी पार्टी में अभी 2 विचार हैं. एक विचार, one train of thought, के वापस विलय कर लें जो अजीत पवार जी की पार्टी है, और दूसरा टू स्टे इन दी ऑपोजिशन एंड फाइट अगेंस्ट राइट लीनिंग फोर्सेस. आप कौन से कैंप में हैं कि विलय कर लें, एक हो जाए एनसीपी के साथ, या टू फाइट अगेंस्ट
राइट विंग फोर्सेस। अगर आप मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ। देखो, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आक्रामक इस सरकार के खिलाफ कौन है? मैं हूँ। तो आंसर वही है ना, मैं सरकार के खिलाफ हूँ, वो राइट विंग के विचार के खिलाफ हूँ, उसी की तरह से मैं काम करूँ। देखो, जब 100 लोग होते हैं, 10 लोग कहते हैं कि सत्ता में क्यों जाना है, काम करने के लिए जा रहा है, 90 लोग विरोध में है ना, तो मैं 90 लोगों में आता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप दूसरे कैंप में हैं, लड़ने वाले पर कैंप ये में। मान रहे हो कि दो विचारधारा हैं, होते हैं जैसे ना। शरद पवार जी ने बोला, आप ही की शरद पवार एनसीपी में। एमएलएस की बात करें तो थोड़े बहुत एमएलएस बोलते हैं कि अपने को सत्ता में जाना चाहिए काम के लिए, और हम लड़ना चाहते इसलिए कि पॉलिटिक्स में हम टेम्पररी बेनिफिट के लिए या टेम्पररी एक आध पद के लिए या काम के लिए नहीं आए, हम विचार के लिए आए। थोड़ा तो संघर्ष बट करना मेनी पड़ेगा। आर सेइंग फॉर सर्वाइवल दिस इज योर ओनली ऑप्शन। से मैंने कैसे आपको मालूम है? बोला पार्टी सर्वाइवल आपका नहीं। मैंने नहीं, फ्यू, नो वन नोज। पवार साहब ने नहीं बताया कितना टक्का, कितने लोग वगैरह। पवार साहब ने बोले 2 विचार है, एक छोटा सा विचार हो सकता है, लेकिन विचार तो 2 है। एक तीसरा विचार है कि बीजेपी के साथ जुड़ जाना चाहिए। कौन बोलेगा वैसा? मैं पूछ रही हूँ, नहीं, वो विचार नहीं है। नहीं। हाँ, मतलब एक एक्टिव विचार है कि वापस अब जो 2 पार्टी हैं मिल जाना चाहिए, और थोड़े लोग वैसा कहते हैं। ये आपका विचार नहीं है। नहीं, मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार अगर हमको जुड़ना है, एक ही ऑप्शन है, दादा को बीजेपी के साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर इफ वो वापस आना चाहते तो शायद हम एक साथ में आ सकते हैं। अच्छा, आप ऑप्शन दे रहे हैं उन्हें? ऑप्शन नहीं दे रहे, फिर ऐसे हो सकता है। बीएमसी इलेक्शन अकेला लड़ना चाहिए कि कैसे लड़ना चाहिए? बीएमसी, अभी देखो, ये बीएमसी बहुत बड़ी संस्था है। इसका जो बजट है, अगर आप देखो तो बहुत सारे राज्यों से बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाएगा, सब पार्टी इकट्ठा बैठ के वहां पे निर्णय लिया जाएगा। एक पार्टी अकेले निर्णय नहीं ले सकती। पर रोहित पवार जी, ये जो सब पार्टी इकट्ठा जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें तो नहीं बैठ पाई। देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज व्हेन इट केम डाउन टू सीट शेयरिंग। अब कैसे बैठ जाएंगे? नहीं, देखो कैसे होता है, लोकसभा जीतने के बाद बहुत सारे हमारे नेता हावे में गए थे। हम सबको लगा था हमारी सत्ता अभी महाराष्ट्र में आ रही है, उसमें नेगोशिएशन में बहुत सारा टाइम लगा, और वो टाइम लोकसभा विधानसभा के बीच में का बीजेपी और सत्ताधारी पक्षों ने उसका इस्तेमाल अलग अलग स्कीम्स लाने के लिए, पैसे का इस्तेमाल करने के लिए वो ज्यादा किया। तो हम थोड़े से हवे में गए थे। अभी हम रियलिस्टिक है, तो डेफिनेटली चर्चा जब होगी तब अच्छी तरीके की चर्चा होकर अच्छी स्ट्रैटेजी पे उसमें से निकल आएगी। Rohit, yesterday we had Aditya Thackeray ji with us, and he said that he is planning a similar Rahul Gandhi-like investigation. Rahul Gandhi is planning to drop a hydrogen bomb, is what he says, where his new investigation in what he claims is vote chori. आदित्य ठाकरे says कि वो अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में वर्क कर रहे हैं, और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक ईसी पे बहुत जल्द करने वाले हैं। क्या आपका कोई ऐसा प्लान है? नहीं, राहुल गांधी जी अगर हाइड्रोजन बॉम्ब डालेंगे उसका फायदा हमको भी होने वाला है। अभी आदित्य जी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं तो हमको ही फायदा होने वाला है। अगर ये दोनों उस विषय पे काम कर रहे हैं तो हम फिर जो रियल इश्यूज है लोगों के, जैसे किसानों के इश्यूज है, युवाओं के इश्यूज है, उस पे हम अलग अलग रैलीज वहां पे हम कर रहे हैं। तो हम अलग अलग चीजों पे वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके लिए हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी ने एक चीज कही है जो कल देवेंद्र फडणवीस जो इसी मंच पर आए थे उन्होंने काउंटर किया था। राहुल गांधी ने बोला था कि देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वोट चोरी की जो उनकी लड़ाई है, ये जेन जी को लड़नी चाहिए। अब जेन जी को बाहर निकलना चाहिए। रोहित, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें नेपाल में जो हुआ, वहां पर जेन जी एक बहुत ब्लडी रेवोल्यूशन लेके आई है। उस कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी कह रही थी ये बहुत डेंजरस है। कल देवेंद्र फडणवीस ने जी ने बोला है कि राहुल गांधी जी को नेपाल ही में रहना चाहिए, वहीं चले जाना चाहिए। देखो, बीजेपी किस चीज के लिए लड़ रही है? एक तो उठाव के लिए लड़ रही है। अगर लोग उनके खिलाफ जाएंगे, जो अभी लग रहा है, तो डेफिनेटली दे आर स्केयर्ड ऑफ इट। और दूसरी बात हमको जो पता चली है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने हर एक राज्यों को एक इंफॉर्मेशन देने बोली है कि कब कब ऐसे उठाव हुए थे, कब कब रैलीज हुई थी, कब कब आंदोलन हुए थे, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, किस चीज के लिए किया था। ये पूरी इंफॉर्मेशन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस राज्य को वहां पे पूछे। किसके बाद? नेपाल के बाद। मतलब कहा ना कहा तो भी डर है बीजेपी के मन में कि लोग अगर उठाव करेंगे तो ईवीएम भी नहीं चलेगा, वहां पे वोट चोरी भी नहीं चलेगी, उनको प्रॉब्लम आ सकता है। रोहित, ये इंस्टिगेटिंग नहीं है, इंस्टिगेटिंग द यूथ ऑफ द कंट्री टू टेक अप आर्म्स, एनर्की।
नहीं, आर्म्स अलग चीज है, आर्म्स किसी ने नहीं लेना चाहिए। सबका सबसे बड़ा ताकत है यूनिटी। पर आप नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल में तो यही हुआ था ना। गलत चीज हुआ ना, हम गलत कहाँ हुआ, पे मान रहे हैं सपोर्ट कर? गलत। नहीं, अगर आप बंदूक लोगे, आप आग लगाओगे, किसी को मारोगे, वो गलत चीज है। लेकिन आप इकट्ठा आके अगर आप लड़ना चाहते हो तो लड़ना चाहिए ना, आपको वो अधिकार है। रोहित, ओके, आई जस्ट हैव हम आपका नेक्स्ट गेस्ट लेट है हमारा, बट वील जस्ट टेक 2 more minutes, रोहित, और लेट्स डू 5 more minutes. आई थिंक वी कैन गेट अ 5 minutes एक्सटेंशन. बट हाँ, सो आप कह रहे हो कि लड़ना का अधिकार है और जो युवा है उसको निकलना चाहिए, आने चाहिए। हम सब 60% लोग हैं और दूसरे, लेकिन आके अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कुछ खराब करने वालों या आग लगाने वालों या बंदूक चलाने वालों, तो वो गलत चीज है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत यूनिटी है। अगर यूनिटी मन में रखते हुए साथ में आ रहे हो खुद के विषय के लिए, देखो अभी ये जो अभी रेनफॉल जो हुआ था उसके कारण जो नुकसान हुआ, अगर सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो लोग रास्ते पे आने वाले हैं। रोहित, आप अपने करियर को कैसा देखते हैं? The perception is Rohit Pawar wants to now, if this is going to be the Sharad Pawar faction, possibly lead it at a state level. Is that how you're looking at your own career? देखो, अगर हम बिजनेस में जब आते हैं तब कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं। आप सोशल लाइफ में काम करते हो तो कुछ बड़ा करना चाहते हो। सेंटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं, महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है, मन से महाराष्ट्र के लिए काम करना है, क्योंकि महाराष्ट्र अगर आप देखो तो सबसे पावरफुल स्टेट है। अभी अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद अगर कोई एम्बिशन है कि अल्टीमेटली यू आर लुकिंग एट द चीफ मिनिस्टर्स चेयर बट नॉट अ सेंट्रल पोस्ट इन द सेंटर एज अ मिनिस्टर? मैं इतना ही कहूंगा, इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी विषय इस स्टेट का अगर हो, कोई भी व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, एक फोन पे काम होना चाहिए। बस इतनी ताकत राजनीति में है जो मुझे मिलनी चाहिए आगे जाते वक्त। रोहित, what made you pull out your phone and make a video of the agriculture minister playing rummy on his card, on his phone? मैं खुद वीडियो नहीं निकाला था, किसी ने निकाला था। अभी वो सत्ता वाला था या कोई और कोई था, आपको दिया था? पेन ड्राइव पे आया था, वो मैंने सिर्फ चलाया था। और जो भी चीज आती है, जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अभी हमारे पास है। आपको डेफेमेशन के लिए सू कर दिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, जो अभी एग्रीकल्चर नहीं खेल मंत्री है। बराबर है, लेकिन डेफेमेशन का अगर आप नोटिस भी देखो, वहां पे भी बहुत फनी नोटिस है। अभी 10 दिन पहले नासिक में कोर्ट में वो हाजिर हुए थे, उनका जो भी वकील था। कल हियरिंग था, मेरे वकील गए, उनके नहीं आए थे। उनका केस बहुत वीक है। अभी देखो डिफेमेशन क्यों हुआ था कि उस व्यक्ति का वीडियो मैंने डाला था, मैंने तो प्रूफ दे दिया ना। डिफेमेशन कहाँ पे हो गया? डिफेमेशन अगर आप गलत चीज बोलते हो और उसका प्रूफ नहीं है, उसका डिफेमेशन होता है। यही अगर नेताओं को मालूम नहीं है, इसीलिए तो आज किसानों की ये परिस्थिति है। अभी वो खिलाड़ी हो गए या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए, अभी स्पोर्ट्स में और यूथ मिनिस्टर में क्या करेंगे क्या पता। रोहित, एज अ यंग लीडर, do you not see that there is something so rotten with the way Maharashtra politics function in terms of money? You know, you might say Khoka Sarkar, but the Khokas run quick and fast on either sides of the political divide. Money power जो politics में है, do you accept that it's wrong? 100% it is wrong. अगर आप देखो बहुत सारे But your party has been equal party to that. किसके लिए? There have been so many allegations over the years. About what? Money power, They were using against money. who? Against your own leaders. Who? अभी तो आपके में नहीं है, अजीत जी। और किसके साथ है? शरद पवार जी में कितने एलिगेशन? किसके साथ थे वो? जो भी नेता जिसके खिलाफ बोला गया, वो किसके साथ है? बीजेपी के साथ। किसने कहा था? शरद पवार जी जब बीजेपी के साथ थे तब आप उनकी बात कर रहे हैं। तब बीजेपी पवार साहब के बारे में कौन सा एलिगेशन वहां पे प्रूव हुआ है? सो मेनी। अरे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, जो इस्तेमाल करो ना, वो कर सकते थे। सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिला, इसलिए तो पवार साहब अभी लड़ रहे लोगों के लिए। और जिनके खिलाफ होगा या नहीं होगा वो मालूम नहीं, उनको ही मालूम होगा। उन्होंने एलिगेशन किया था बीजेपी ने, और जिसके खिलाफ एलिगेशन, जिन जिन नेताओं के खिलाफ किया था, वो सब उनके साथ है। और हम जो अभी रह गए, हमारे ऊपर भी ईडी हुआ था, हम थोड़ी डरे, हम नहीं गए। तो आज ये मराठी लोगों की खासियत ऐसे, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम अभी पवार साहब के साथ, लोगों के साथ इसलिए क्योंकि हम लड़ना चाहते हैं। आज अगर आप लड़ोगे तो ही महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा दिन 29 पे या 29 के बाद हम सबको दिखाई देगा। 29 में किसको लीडर बनना चाहिए? किसको? इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस रहेगा 29 तक? रह सकता है ना, रह सकता है, रह सकता है। बिहार का इलेक्शन Should it be a Rahul Gandhi versus Modi?
मोदी साहब रहेंगे नहीं मालूम, अभी थोड़ा सा राहुल गांधी होने चाहिए। कैसे होता था पहले, आरएसएस का बहुत दम था, लेकिन आज ऐसे लग रहा है आरएसएस का दम कम हो गया, बीजेपी का नेताओं को वहां पे दम बढ़ गया। वो 75 का एज लिमिट का विषय था, आरएसएस के जो प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि 75 इज मस्ट। 10 दिन के बाद उनको उनका स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। तो अभी मोदी साहब 29 तक रहेंगे ऐसे तो दिख रहा है, नहीं तो अभी उनका रिटायरमेंट हो सकता था आरएसएस के पॉलिसी के हिसाब से। आरएसएस का अभी नहीं चलता, बीजेपी के हिसाब से अभी 29 तक चलेगा, उसके बाद शायद कोई और रहेगा। अभी कौन महाराष्ट्र का वो व्यक्ति रहेगा कि यूपी का रहेगा, उतना ही सिर्फ क्वेश्चन है। और महाराष्ट्र में भी 2 लोगों की चर्चा है, लेकिन एक जो बड़ा नेता है, जैसे 2014 के पहले जब चर्चा उनकी चल रही थी तब एक उनके कंपनी का विषय है। तो यूपी की बात कर रहे हैं वो आप आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसकी बात कर रहे हैं? अभी बीजेपी के जो 2 नेता है उनकी बात चल रही है, दोनों नागपुर से है, लेकिन 2014 में जब उनमें से बड़ा नेता फडणवीस जी और नितिन गडकरी जी की बात चल रही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, गडकरी साहब का जब विषय 2014 में हुआ था तब बीजेपी के ने बहुत सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन कांग्रेस को दी थी पूर्ति ग्रुप के बारे में, और उस टाइम 2014 के पहले पूर्ति ग्रुप का सेल्फ सैबोटाज ये आप अलेज कर रहे हैं। तो अभी आप रोहित आप कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी के चांसेस बीजेपी ने सेल्फ सैबोटाज किए थे। 100% ऐसा लोगों को लगता है। मैं लोगों में से एक हूँ, सिटीजन हूँ। दूसरी बात, अभी देखो वापस चर्चा चालू हो गई, तब HMV कहते हैं ना, हिज मास्टर्स वॉइस। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाणक्य नीति क्या जाते हैं दूसरों का इस्तेमाल करने का, वैसे इस्तेमाल करके अभी कल परसों ही नितिन गडकरी साहब का एक विषय बाहर आ गया। मतलब जब भी इंपॉर्टेंट टाइम आता है तब कोई ना कोई विषय नितिन गडकरी जी के खिलाफ। नितिन गडकरी जी ने ऑन स्टेज बोला है दैट देयर इज अ पेड कैंपेन अगेंस्ट हिम वेयर एथेनॉल इज कंसर्न। अनफॉर्चुनेटली इट कुड बी फ्रॉम बीजेपी ओनली। आप ये कह रहे हैं? हो सकता है, पैसा उन्हीं के पास है। पेड पैसा तो आपके पास बहुत है। कहाँ पे है? दिखाओ, जो भी है लेजिट है। और दूसरी बात, ईडी भी उसके बारे में ढूंढ रही कहाँ पे पैसा मिलेगा। मैं ईडी को कह रहा हूँ, अगर आप पैसा कहाँ पे मिलेगा दे दो, फंडिंग की कम है, हम पार्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ वहां पे एक पिक्चर पेंट किया गया है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, डू यू थिंक राहुल गांधी इज फिट इनफ टू लीड, व्हिच यू सेड कि इंडिया अलायंस रह सकता है 29 तक, टू लीड इंडिया अलायंस? इज ही द प्रेफर्ड प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर यू? नहीं, व्हाई नॉट, आई एम आस्किंग व्हाई नॉट आगे जाके। लेकिन जो दूसरा भी नेता है, सब नेता जैसे कि अखिलेश जी है, फिर और बहुत सारे नेता है, उनके बारे में भी साथ में बैठ के जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लिया जाएगा। So you're saying, मतलब चलो he's a good candidate. He's a good candidate, but he's one of the candidates like an Akhilesh ji or Mamata Banerjee is also in that? नहीं. She can be. She can be, but he's not the only. एक पेज पे तो आने चाहिए सब। जब इंडिया का विषय आता है तब सबको एक पेज पे आने की जरूरत है। अभी नहीं आप इंडिया के बारे में सोचते हो, फिर बाद में आप स्टेट के बारे में सोचते हो। अगर आपको इंडिया के बारे में मतलब कंट्री के बारे में सोचना है तो कंट्री के लिए साथ में आना पड़ेगा। लेकिन जब स्टेट इलेक्शन पॉलिटिक्स आ जाता है तब आप अलग अलग हो जाते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा या आप इंडिया के लिए, कंट्री के लिए लड़ रहे हो कि स्टेट के लिए लड़ रहे हो। जो भी कंट्री के लिए लड़ने के लिए तैयार है उसमें से जो कैंडिडेट आएगा उसमें से एक कैंडिडेट इज ओके। And you're very happy staying in the state and fighting for Maharashtra. You have no ambitions of leading a bigger charge where the center is concerned. 14 के बाद अगर आप देखो तो महाराष्ट्र को इतने पीछे लेके गया, अभी महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है तो उसके लिए किसी को तो काम करना पड़ेगा। अजीत दादा के साथ वापस जाना पड़े तो जाएंगे। आपको वही बता रहा हूँ कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आगे जाके अगर जो भी है बीजेपी छोड़ के हमारे पास आना चाहते हैं तो उसका तो हम वेलकम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर समबडी हु इज यंग, who looks at politics, should there be a retirement age? You spoke of 75 years right now, where the whole question of the RSS, but do you think, आपको लगता है कि कोई रिटायरमेंट एज होनी चाहिए कि हो गया, आप कितना करते रहेंगे औरों को मौका दीजिए? देखो, लीडर पे डिपेंड करता है। अगर वो लीडर सब चीजें अपने पास रखता है तो एक गलत चीज है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर वो लीडर 75 के आगे, 80 के आगे, शरद पवार जी इज, लेकिन व्हाट ही डज इज ही डज डिसेंट्रलाइजेशन। वो हमारे जैसे लोगों को जिम्मेदारी देके लड़ने के लिए कहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप सेंट्रलाइजेशन रख रहे हो तो वो गलत चीज है। जैसे बिजनेस चला रहे हो, एक अगर चेयरमैन है, ही इज 85 ईयर ओल्ड, सो देयर शुड बी नो, अगर आपका एज जब तक चल रहा है ना तब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। राजनीति में जैसे बॉडी इज इम्पोर्टेंट वैसे ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और अनुभव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नए लोग कुछ
ऐसे एक्साइटमेंट में कुछ कर दिए, उसके फटका राज्य को हो सकता है। अगर एक्सपीरियंस बंदा अपने साथ है, व्यक्ति है, लीडर है, तो वो बताएगा कि ये निर्णय अगर आप लोगों के ये इम्पैक्ट आएगा, तो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो Have लेकिन you ये been, you said decentralization. Have you been given the charge for the state of Maharashtra by Sharad Pawar ji for NCP? yeah, Sharad I'm Pawar? heading different cells. But to lead the party? Different cells. I'm leading different cells. Is that the ambition in the long run right now? नहीं, देखो, पार्टी इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। पार्टी को आगे लेके जाने के लिए बहुत जन लगने वाले हैं, तो बहुत सारे नेता हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं इकट्ठा। All right. Thank you, Rohit Pawar ji, Thank for you. joining us. Ladies and gentlemen, Thank you. please raise a warm applause for Rohit Pawar. He's taken all questions and more or less some controversial ones as well. But Rohit, thank you for joining us this morning. I wish you all the best.